Yeah, very good morning, students. On behalf of Subhash Chandra Academy, I welcome you on this YouTube channel and I congratulate you for getting promotion in the next class. Today, students, I am going to start the second chapter for your book, First Prize for Class 10th English. The chapter's name is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Now I am going to start the chapter. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। सफेद लोगों के 3 शताब्दी के शासन के बाद मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी हैज वॉन 252 सीट्स ऑफ 400 सीट्स। नेशनल मंडेला की साउथ अफ्रीकन पार्टी, जिसका नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, उसने 400 में से 252 सीटें जीती इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ द साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टूक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by the politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never again will this beautiful land experience the operations of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में कहा कि अब ये देश कभी भी नहीं किसी दूसरे के ऑपरेशंस मीन्स अत्याचार, यानी किसी के भी अत्याचार को अब नहीं सहेगा। नाउ द लाइन्स ऑफ द चैप्टर। 10th May dawned bright and clear. 10 मई की सुबह बहुत ही चमकीली और साफ थी। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. For the past few days, पिछले कुछ दिनों से I had been pleasantly besieged, मैं शानदार तरीके से घिरा हुआ था, by dignitaries and world leaders, महान हस्तियों से और संसार के लीडर्स से, who were coming to pay their respect, जो लोग अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आए थे बिफोर द इनॉग्रेशन, यानी स्वागत समारोह, यानी जो स्वागत समारोह था, जो उद्घाटन समारोह था, उसमें वो लोग अपना आदर दिखाने आए थे। मीन्स व्हेन साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम फ्रॉम अपार्थाइड by his famous leader Nelson Mandela and National Mandela's party ANC won 252 seats and became the first democratic ruler. So on that occasion there was an inauguration. So in that inauguration many people who are dignitaries and world leaders came to congratulate Nelson Mandela. The inauguration would be the largest gathering over the international leaders of South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria. The ceremonies took place in the lovely सैंडस्टोन एम्फीथिएटर, यानी समारोह को संपन्न किया गया रेतीले पत्थर से बने हुए खुले थिएटर में, एक गोलाकार थिएटर में। एम्फीथिएटर का मतलब होता है गोलाकार थिएटर जिसमें ढेर सारे लोग बैठ सकते हैं। एक गोलाकार बिल्डिंग जिसके अंदर ढेर सारे लोग गोल में बैठते हैं, गोल तरीके से बैठते हैं। तो मीन्स उस समारोह में, जो कि एक रेतीले पत्थर से बना हुआ था और वो यूनियन बिल्डिंग्स की तरफ से बनाया गया था प्रिटोरिया में,
वहीं पर यह सेरेमनी किया गया। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। कई दशकों तक यह सीट सफेद लोगों के श्रेष्ठता को प्रदर्शित करती थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और अब यह जगह विभिन्न रंगों की इंद्रधनुष और देशों के इकट्ठा होने की वजह से जानी जा रही है, जो साउथ अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक अनस्लीय सरकार को स्थापित करने के लिए इकट्ठा हुए थे। One day, the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jannani on the podium. उस लवली ऑटम वाले दिन को मैं अपने लड़की के साथ पोडियम पर गया। Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. मिस्टर डी क्लर्क को सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। देन थाबो मबेकी वाज सोर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर थाबो मबेकी को पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। When it was my turn, जब मेरा टर्न था, I pledged to obey the uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people. When it was my turn, जब मेरा टर्न आया, I pledged to obey, तो मैंने आज्ञा निभाने के लिए वचन दिया, and uphold the constitution, और कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लिया, and to devote myself to the well-being of the republic, और रिपब्लिक की अच्छाई के लिए, यानी इस गणतंत्र की स्थापना की अच्छाई के लिए और इसके लोगों के लिए मैंने उनके लिए आज्ञाकारी होने का वचन दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथ में लिया। टू द assembled guests and watching world I said, यानी वहाँ पर इकट्ठे मेहमानों और पूरे देख रहे संसार से मैंने कहा, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Today all of us do by our presence here, आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर कन्फर ग्लोरी को प्रदान करते हैं, एंड होप, और एक आशा को, टू अ न्यू बॉर्न लिबर्टी, एक नए जन्मे स्वतंत्रता को, यानी एक देश में आए हुए स्वतंत्रता को हम लोग एक ग्लोरी और आशा प्रदान करते हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Out of the experience of an extraordinary human disaster, यानी एक भयानक ह्यूमन डिजास्टर, एक असाधारण ह्यूमन डिजास्टर की अनुभव से ऊपर उठकर, that lasted too long, जो बहुत लंबे समय तक चली, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक तरह के मानवता की स्थापना, एक तरह के मानव समाज की स्थापना की जानी चाहिए जिस पर सारे ही मानवता को गर्व हो। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, हम लोग जो कि बहुत साल पहले नहीं अपराधी बना दिए गए थे, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. Have today been given the rare privilege, अब हम सबको एक दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया था,
टू बी होस्ट, संभालने के लिए, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे संसार को संभालने का, ऑन आवर ओन सॉइल, यानी अपनी धरती से अपने पूरे नेशन को संभालने का हमें एक दुर्लभ विशेषाधिकार अब दिया गया है। वी थैंक ऑल आवर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेट्स, हम अपने सभी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का सम्मान करते हैं। फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, फॉर हैविंग कम टू टेक पोसेशन, यानी यहाँ पर आने के लिए, विद द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, जो कि जस्टिस के लिए कॉमन विक्ट्री है, फॉर पीस, फॉर ह्यूमैनिटी डिग्निटी, शांति के लिए और मानव की डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स पहचान, यानी मानव की पहचान के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड our political emancipation, इमेंसिपेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता। हम सब अंत में अपने राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिए। वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination. We pledge ourselves to be liberate all our people. हम अपने आप से वादा करते हैं, हम अपने आप को वचन देते हैं कि हम अपने लोगों को स्वतंत्र रखेंगे फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी भूखमरी की जाल से, डेप्रिवेशन, वंचित होने से, कष्टों से, जेंडर और अन्य तरह के भेदभावों से मुक्त करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर। अब दोबारा कभी भी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, यह सुंदर जगह, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर, कभी भी दूसरे या तीसरे लोगों के अत्याचारों को नहीं सहेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। अब सूर्य इस मानव की उपलब्धि के वैभव को देखने के लिए कभी भी नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब स्वतंत्रता को अधिकार करने दिया जाए और ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। या इन दिस वे स्टूडेंट्स, I can say the first part of this chapter has been finished. Now there are some comprehension questions. The first comprehension question is, where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? Can you say how May 10 is an autumn day in South Africa? So students, there are 5 comprehension questions. You have to read the first part of this chapter properly and have to answer these questions your own. Now moving forward. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षण के बाद हम लोगों ने डर की वजह से अपनी आंखों को ऊपर किया। As a spectacular array of South African jets, जो कि
यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकी जेट, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों की दहाड़ का एक शानदार नजारा शुरू हो चुका था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. यह न केवल एकदम सही तालमेल और फौजी शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि एक फौज का प्रजातंत्र, एक नई सरकार जो ईमानदारी से और स्वतंत्रता से चुनी गई थी के प्रति वफादारी का प्रदर्शन भी साउथ अफ्रीका के मिलिट्री फोर्स ने किया। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट baked with ribbons and medals from days gone by. कुछ क्षण पहले ही साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट जनरल्स और अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के पुलिस, जिनके चेस्ट पर कई सालों से ढेर सारे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी को मेरे सामने पेश किया, अपने लॉयल्टी को मेरे सामने वचन दिया, यानी अपनी वफादारी का कसम खाया। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ दैट फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, जहाँ तक वास्तव में मुझे याद है, यानी मुझे भूला नहीं था, कुछ साल पहले ही, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, यानी बहुत साल पहले नहीं, बल्कि दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्ट मी, वो लोग मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, मुझे अरेस्ट किए थे। फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के एक नए झंडे को काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरा रंग भी आकार के पैटर्न में छोड़ा। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikelel Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. हमारे दो राष्ट्रगानों के द्वारा यह दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया, और सफ़ेद लोगों का जो स्वप्न जो गा रहे थे, निकोसी सिकेले अफ्रीका, और काले रंग जो गणतंत्र का पुराना राष्ट्रीय गान गा रहे थे, डाई स्टीम। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी, यानी यह दिन मेरे लिए एक जीता जागता उदाहरण बन गया, बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स, हमारे देश के दो नेशनल एंथेम से, एंड द विजन ऑफ द वाइट्स सिंगिंग, और सफ़ेद लोग अपने विजन यानी अपनी एक सोच के साथ गा रहे थे, नकोसी सिकेल अफ्रीका, और जबकि काले लोग गा रहे थे डाई स्टेम, द ओल्ड एंथेम ऑफ रिपब्लिक, आल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथेम, they once despised, they would soon know the words by heart. यद्यपि उन दिनों में से कोई भी दल राष्ट्रीय गान की सही लय को नहीं जानता था, जिसको वे दोनों नफरत करते थे, पर जल्द ही वे इसको शब्दों को दिल से लगाकर याद करने लगे।
although that day neither group knew the lyrics of the anthem. यद्यपि उन दिनों दोनों में से कोई भी ग्रुप इस नेशनल एंथम के लय को नहीं जानता था. दे वंस डिस्पाइज्ड, एक समय में वे इससे घृणा करते थे. दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, अब ये लोग इन शब्दों को दिल से जानने लगे. ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरहेम्ड विथ सीन ऑफ हिस्ट्री. इनॉग्रेशन वाले दिन, उद्घाटन वाले दिन, मैं इतिहास की भावना से सरोबोर हो गया था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. A few years after the bitter Anglo-Boer War, यानी एक बिटर, एक कड़वे एंग्लो और बोर के बीच में लड़ी गई इस लड़ाई से वार, बिफोर माई ओन बर्थ, यानी मेरे जन्म से पहले ही, a few years after, यानी कुछ सालों के बाद, बिफोर माई ओन, यानी मेरे जन्म के कुछ सालों के बाद, एंग्लो और बोर के बीच में एक तीखा युद्ध छिड़ गया. द वाइट स्किन पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस. साउथ अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने भेदभाव को मिटा लिया. एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेसिकल डोमिनेशन, और एक प्रकार का रेसिकल डोमिनेशन वाला सिस्टम खड़ा कर दिया. रेसिकल डोमिनेशन का मतलब जातिगत भेदभाव वाला. अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल ऑफ देयर ओन लैंड, अपने ही देशों के काले लोगों के खिलाफ. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन societies the world has ever known. The structure they created, संरचना जो उन्होंने बनाई थी, form the basis of one of the harshest, जो सबसे one of the harshest, harshest मतलब भयावह, वन ऑफ द हार्सेस, मोस्ट इनह्यूमन, सबसे ज़्यादा अमानवीय, सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, समाज जिन्हें ये संसार कभी जानता था. नाउ इन द ओवरटर्न्ड फॉर एवर, अब वो पूरी तरह से बदल चुके थे, हमेशा हमेशा के लिए. एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल्स, और उनके द्वारा वे लोग बदल दिए गए जो लोग अब सभी लोगों के अधिकारों और सम्मान को और रक्षा को अच्छी तरह से जानते थे. और रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, यानी अपने स्किन के कलर के अलावा, यानी अपने स्किन के कलर से दूर. That day had come through the unimaginable sacrifices of the thousands of my people. वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के सहारे आया था. That day had come about through the unimaginable sacrifices of the thousands of my people. People whose sufferings and courage can never be counted or repaid. लोग जिनके कष्टों और साहस को कभी भी
कम या भुलाए साहस को कभी भी काउंटेड कम नहीं किया जा सकता, और रीपेड न ही उन्हें कीमत दिया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैं अन्य सभी दिनों में महसूस करता हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं उन सभी साउथ अफ्रीका के देशभक्तों का एक योग हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, यानी वह एक लंबा और अच्छा दिन अब खत्म हो गया था। एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, और फिर मेरे साथ शुरू हो गया। यानी वे लोग ख़त्म हो गए और नेल्सन मंडेला बचे थे। तो नेल्सन मंडेला का मानना है कि वे सभी साउथ अफ्रीका के देशभक्त जो मेरे सामने गुजर गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उन सभी का योग हूँ मैं। तो उनके सामने एक समय था जो ख़त्म हो गया और मेरे साथ फिर शुरू हो गया। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, and that they were not able to see what dear I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices and had wrought. I was pained, मुझे कष्ट था, that I was not able to thank them, कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सकता था, and that they were not able to see, और वे अब मुझे नहीं देख सकते थे, what their sacrifices had wrought, कि उनके बलिदानों ने क्या ला दिया, यानी उनके बलिदानों से साउथ अफ्रीका को क्या प्राप्त हुआ। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. The policy of apartheid, the policy of apartheid यानी रंग भेद की नीति ने मेरे देश में और मेरे लोगों के अंतर एक गहरा घाव पैदा किया था। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. All of us will spend many years, हम सभी लोग काफ़ी लंबे समय तक रहेंगे। If not generations, यदि generations नहीं तो recovering from that profound hurt, यानी अगर जनरेशन्स नहीं लगेंगे, यानी कई पीढ़ियों तक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई साल जरूर लगेंगे। फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, यानी उस अत्यंत भयावह कष्ट से उबरने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस, लेकिन अत्याचारों, ब्रूटैलिटी, ऑपरेशन से ब्रूटैलिटी दोनों का मतलब अत्याचार होता है, यानी अत्याचारों और कष्टों के दशकों से एक दूसरा अनइंटेंडेड, मतलब जिसको कोई चाहता नहीं है, एक दूसरे तरह का प्रभाव आया। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर Tambos, the Walter Sensulus, the Chief Luthless, the Yusuf Danders, the Bram Fishers, the Robert Subkovish of our time. यानी इन अत्याचारों और ब्रूटैलिटी के दशकों से का कुछ प्रभाव भी पड़ा कि इस तरह के महानुभाव लोगों का जन्म हुआ या उदय हुआ।
Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. यानी इस तरह के असाधारण साहस, ज्ञान और समझदारी वाले लोग अब शायद फिर नहीं जन्मेंगे. Perhaps it requires such depths of operations to create such heights of character. Mr. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that the greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. हमारे देश के ज़मीन के नीचे कई तरह के मिनरल्स और जेम्स हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि इन सभी चीज़ों के अलावा हमारे देश के लोगों का दिल ज़्यादा शानदार है. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल. यह मेरे लोगों की या मेरे साथियों के संघर्ष से मुझे सीखने को मिला. दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज. मैंने साहस का मतलब समझा. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. मैंने अपने साथियों से बहुत कुछ सीखा. I have seen men and women. मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से आदमी और औरतों को खतरे में देखा, एक विचार के लिए अपने जीवन को कुर्बान करते देखा. I have seen men stand up to attacks and torture. मैंने देखा है कि लोग आक्रमण और टॉर्चर के सामने बिना टूटे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए और अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए खड़े रहते हैं, जो एक कल्पना को जन्म देता है. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर. मैंने सीखा करेज वॉज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर, कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं होती है. यानी डर की अनुपस्थिति से साहस नहीं पैदा होता है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, इसके ऊपर जीतने से होता है. The brave man is not he who does not feel afraid. बहादुर वो नहीं होता है जो डरता नहीं, बल्कि वो होता है जो डर को जीत लेता है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite, even in the grimest times in prison. When my comrades and I were pushed, even in the grimmest माने सबसे भयावह, यानी प्रिजन में सबसे भयावह दिन. When my comrades and I were pushed to our limits, जब हम सबको अंत समय तक, यानी हमारे सहने के अंतिम समय तक कष्ट दिया गया. I would see a glimmer of humanity in one of the guards. तब भी मैंने एक गार्ड्स के अंदर ग्लीमर ऑफ द ह्यूमैनिटी, यानी मानवता की एक मिसाल को देखा, एक ज्योति को देखा. Perhaps just for a second, केवल एक सेकेंड के लिए ही सही. But I was enough to reassure me and keep me going.
लेकिन मैं ही वो था जिसने अपने आप को सही किया और चलता रहा। मेंस गुडनेस इज अ फ्लैम, आदमी की अच्छाई एक ज्योति की तरह है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन कभी खत्म नहीं किया सकता है। नाउ अगेन यू कैन सी स्टूडेंट्स, देयर आर मेनी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। Just read the second part of this lesson and answer these questions by your own. In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country in a civil and humans. हर आदमी के जीवन में उसके सामने दो वरीयताएं होती हैं। दो बाध्यताएं होती हैं जो कि उसके परिवार, उसके बच्चों, उसके पत्नी, उसके माता पिता के प्रति होती हैं। दूसरा उसके देश, उसके समुदाय और उसको लोगों के लिए होता है। In a civil and human society, एक सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. एक सभ्य और मानवीय समाज में हर व्यक्ति में अपने खुद के अनुसार इन जिम्मेदारियों को पूरा करने की योग्यता होती है। इंक्लिनेशन मतलब होता है योग्यता। Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably reaped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. रेबेलियन का मतलब होता है विरोधी, और सीक्रेसी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। सीक्रेसी का मतलब होता है किसी से मिलने जुलने न दिया जाए। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टेड टू सर्व माई पीपुल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। दक्षिण अफ्रीका में एक आदमी को जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करता है, उसके परिवार से निश्चित रूप से उसे अलग कर दिया, रीप्ड मीन्स अलग करना, और एक अलग जीवन जीने के लिए उसे बाध्य कर दिया था। एक गुप्त और विद्रोह का धुंधला अस्तित्व। शुरू मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर अहमियत नहीं दी, परंतु अब लोगों की सेवा करने की कोशिश मैंने पाया कि मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में जिम्मेदारी निभाने से रोका गया। I was not born with a hunger to be free. मैं आज़ादी की चाह लिए नहीं पैदा हुआ था। I was not born, मैं नहीं पैदा हुआ था विथ ए हंगर, एक भूख के साथ, टू बी फ्री यानी स्वतंत्र, यानी मैं स्वतंत्रता की भूख की चाह के लिए नहीं पैदा हुआ था। I was born free
free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. I was not troubled by the laws of man or God. मेरी माँ की कुटिया के पास दौड़ने के लिए मैं आज़ाद था। मेरे गांव के से होकर हो जाए गुजरने वाली नदी के पानी में तैरने के लिए मैं आज़ाद था। तारों के नीचे भोजन पकाने और धीमे चलने वाले बैलों की गाड़ी की पीठ पर बैठना, इसके लिए मैं आज़ाद था। जब मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने कबीले के रिवाजों को माना, मैंने आदमी या भावना के नियमों के द्वारा परेशान नहीं था। मैं आदमी या भगवान के नियमों द्वारा परेशान नहीं था। I was not born with hunger to be free. I was born free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream that ran through my village. Free to roast meals under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls as long as I obeyed my father. यानी जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था, आई एम अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपने लोगों के रिवाजों को मैं मानता रहा। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तब तक मैं लोगों के नियमों और भगवान के नियमों से कष्ट नहीं पाया। इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयवुड फ्रीडम वॉज एन एल्यूजन, तब मैंने यह जाना कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक छलावा थी। एल्यूजन का मतलब होता है कल्पना, एक छलावा। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, तब मैंने पाया कि मुझसे मेरी आज़ादी पहले ही छीन ली गई है। That I began to hunger for it, तब मेरे अंदर इसके लिए भूख बढ़ने लगा। At first as a student I wanted freedom only for myself, तो सबसे पहले मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता था। The transitory freedoms of being able to stay out at night, रात को बाहर रहने की क्षणिक आज़ादी। ट्रांजिटरी मतलब होता है क्षणिक आज़ादी। रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, वो जो मैं चाहूँ वो पढ़ सकूँ और जहाँ मैं चाहूँ वो जा सकूँ, इसकी आज़ादी में चल। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. बाद में जोहान्सबर्ग में मैं एक जवान के रूप में, मैं अपने अंदर की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, खुद की कमाई कमाने के लिए, शादी करने के लिए और अपने परिवार रखने के लिए, सभी आधारभूत और सम्मानजनक आज़ादी के लिए मैं तड़पने लगा, जो आज़ादी नियमानुसार जीवन में कभी भी बाधा नहीं पहुंचा सकती है। But then I slowly saw that not only was I not free, but then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were also not free. तब मैंने धीरे धीरे ये जाना कि केवल मैं ही नहीं, मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं। I saw
that it was not just my freedom that was curtailed. तब मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी को नहीं काट दिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। मेरी तरह के दुखने वाले हर लोगों को आज़ादी काट दी गई है। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इसलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल। अब तब मेरे अंदर की भूख स्वतंत्रता को पाने के लिए और अपने लोगों को की स्वतंत्रता को पाने के लिए बढ़ने लगी। इट वॉज दिस डिज़ायर for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without than the next man. But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is individual. The chains on any one of my people were the chains on all them. The chains on all my people were the chains on me. परंतु तब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। मैंने देखा कि केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं था, बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले हर एक की आज़ादी पर प्रतिबंध था। वह समय था जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ा, और उसी समय मेरे खुद की आज़ादी की तड़प मेरे लोगों की आज़ादी की तड़प बन गई। मेरे लोगों की इज्जत से जीने की यही आज़ादी जिससे मेरे जीवन को गतिमय बना दिया, इतने डरे हुए युवा को साहसी में बदल दिया तथा कानून का पालन करने वाले को विद्रोही बना दिया। मैं अगले आदमी से अधिक गुड़ी और बलिदानी आदमी नहीं हूँ, पर मैंने पाया कि जब मुझे पता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, तो मेरे को मिली थोड़ी सी आज़ादी भी मुझे आनंद नहीं दे रही थी। आज़ादी व्यक्तिगत नहीं होती है। मेरे लोगों में एक के ऊपर पड़ी जंजीर भी सभी के ऊपर पड़ी जंजीरों के समान थी। मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीरें मेरे ऊपर पड़ी जंजीरें थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. मैं जानता था कि गुलाम बनाने वाले को भी आज़ाद करना पड़ता है, जिस प्रकार वह गुलाम होता है, जिस प्रकार की गुलाम को। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. A man who takes away another man's freedom. एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेता है, is a prisoner of hatred. वह आदमी घृणा का, पीछे से बंद होने का, दुराग्रह की बेड़ियों का और संकीर्ण मानसिकता का गुलाम होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं सच में फ्री नहीं हूं यदि मैं दूसरे की आज़ादी छीनता हूं। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. निश्चय ही मैं स्वतंत्र नहीं हूँ
किसी दूसरे की स्वतंत्रता मेरे द्वारा छीनी जाती है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। गुलाम बनाने वाला और गुलाम का एक समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, यानी एक गुलाम और गुलाम बनाने वाले दोनों की मानवीयता छीनी जाती है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे एज यू हैव सीन, दिस चैप्टर इज वेरी गुड as it has been written by the great leader of South Africa, Nelson Mandela, as he passed his 30 years as a prisoner for fighting against apartheid in his own land. And the last concluding lines have a lot of teachings. These are the dignity of Nelson Mandela. He is saying, students, that a person who is free, that is good for him. But a person who is taking away one's freedom is not a good person. If somebody is taking someone's freedom, means he has the mentality of being tyrant, being unfreedom. So students, just read the chapter and complete its total comprehension questions. Thank you very much.